احکامات سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ یکم شوال المکرم 1446 ہجری 31 مارچ 2025 بروز پیر کو ہوگی۔ اہل وطن اور اہل اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ملک بھر میں عید الفطر آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ بادشاہی مسجد، فیصل مسجد سمیت ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے شوال کے چاند کا اعلان کیا۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ زیادہ تر ڈیمانڈ ہے ٹریڈیشنل مہندی کی، اس وجہ سے یوزلی ہم ٹپے لگاتے ہیں جس سے، لیکن میں نے ایسی ٹپے والی مہندی لگائی ہے اور بیل والی مہندی بھی لگ رہی ہے۔ مجھے ویسے ٹریڈیشنل مہندی پسند ہے کیونکہ آئی تھنک اس کا کلر سب سے ڈارک آتا ہے اور سب سے زیادہ دیر رہتا ہے۔ چاند رات اور شاپنگ، وقت کم مقابلہ سخت، عید شاپنگ کا فائنل ٹچ، بازاروں میں کھڑکی توڑ رش، کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سامان آ گیا۔ خواتین کو مہندی، چوڑیوں اور جھمکوں کی تلاش، مہندی لگانے والوں کی بھی چاندی ہو گئی۔ میک اپ سے زیادہ مجھے فوکس ہوتا ہے کہ میرے بال بہت اچھے لگیں، ہیئر اسٹائلنگ اچھی ہو، بلو ڈرائی بہت اچھا سا ہو۔ ہمارے پاس عید کے سیزن میں جو خواتین آ رہی ہوتی ہیں، ان میں جو ٹین ایجر ہوتی ہیں، ان کا ایکریلک اور لیشز لگوا رہی ہوتی ہیں، وہ جو مدرز آتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ ہائیڈرا فیشیل اور مساج اور اس طرح کی مینیکیور پیڈیکیور جس میں وہ ریلیکس ہو جائیں۔ چاند سا خوبصورت نظر آنے کا مقابلہ، شاپنگ کے بعد سجنے سورنے کا مرحلہ ان پہنچا۔ بناؤ سنگار کے لیے بیوٹی پارلرز میں قطاریں لگ گئیں، پارلرز ساری رات کھلے رہیں گے۔ پلکنگ، مینیکیور، پیڈیکیور لڑکیوں میں مقبول، ہیئر ڈائی اور ہیئر سٹائلنگ کے بھی چرچے، خواتین کو فیشل کرانے میں دلچسپی۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا، عید کا دن ہمیں اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد کریں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ شہباز شریف نے کہا، پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ دن ہمیں خوشی، شکر گزار، اخوت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ آج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں، متحد ہو کر وطن عزیز کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی بھی اہل اسلام کو عید کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا، عید الفطر یکجہتی اور محبت کے جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ازبیک اور آذربائیجان کے صدور کو فون عید کی مبارکباد دی۔ گہرے اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات اپریل کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان ازبیکستان تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے قریبی رابطے میں رہنے کا عزم۔ وزیر اعظم کی ازبیک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم کا ترک صدر رجب طیب اردوان، کویتی ولی عہد اور شاہ اردن کو فون عید پر مبارکباد دی۔ رہنما نون لیگ خواجہ حسان سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، معیشت کی بہتری اولین ترجیح ہے، پاکستان کو مضبوط معاشی قوت بنائیں گے، ملک کو پیش بد امنی کے چیلنج کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ صدر آصف علی زرداری آبائی علاقے نواب شاہ میں عید الفطر منائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری عید لاڑکانہ میں منائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عید لاہور میں منائیں گے۔ شہباز شریف ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کریں گے۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جاتی عمرہ میں عید کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ عید کا دن فیصل آباد میں گزاریں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال عید ناروال میں منائیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان عید قصور میں منائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سہمن میں عید منائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نماز عید الفطر لاہور میں ادا کریں گے۔
सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में गुज़श्ता रोज़ ईद उल फितर मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूपर इज्तिमात हुए। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और यमन में ईद मनाई गई। पेशावर समेत KP और ज़म अज़ला में अफ़गान मुहाजिरीन ने ईद उल फितर मनाई। मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। कराची में दाऊदी बोहरा जमात ने भी ईद उल फितर मनाई। सदर की ताहरी मस्जिद में नमाज ईद का मरकज़ी इज्तिमा। भारत, बांग्लादेश, ईरान और ओमान में आज ईद होगी। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रुनाई में भी ईद आज। इसराइली दहशतगर्दी के बाद तबाहाल गजा में दूसरी ईद उल फितर। मजलूम फ़लस्तीनियों ने इस साल भी खंडरात में नमाज ईद अदा की। फ़लस्तीनी शहरियों का कहना है, हम अपने बच्चों को ईद की खुशियां नहीं दे सके। गजा में ज़िंदगी अज़ियतनाक है, लोग बामुश्किल गुजारा कर रहे हैं। कुछ खाते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह ही जानता है लोगों का क्या हाल है। दुनिया से सवाल है, क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारे बच्चों को दुनिया के तमाम बच्चों की तरह खुश रहने का हक नहीं? गजा में भी ईद पर इसराइली जारियत ना रुकी। खान यूनस, रफा, जबाली और गजा सिटी समेत कई इलाकों पर बमबारी। कराची और KP में चांद रात पर हवाई फायरिंग के वाक़यात। कराची में बच्ची समेत 15 से ज़ायद अफराद जख्मी, 4 मुलजिम गिरफ्तार। डेरा इस्माइल खान में हवाई फायरिंग से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। आज़रबाईजान की पाकिस्तान को $1 अरब कैश डिपॉजिट की पेशकश। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की फंडिंग के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त के जवाब में पेशकश की गई। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया दौरे में फंड्स फराहमी की दरख्वास्त की थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक आज़रबाईजान की हुकूमत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त के जवाब में 2 ऑप्शन तजवीज़ किए। ज़राए के मुताबिक आज़रबाईजान की पेशकश पर मुख्तलिफ पाकिस्तानी महकमों में इत्तफाक़ राय नहीं, कर्ज के तरीक़ेकार पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कराची कोरंगी में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। फायर ऑफिसर के मुताबिक ज़मीन से गैस बड़े प्रेशर से निकल रही है। आग बुझाने की कोशिश की तो इलाके में फैल जाएगी और ज़्यादा ख़तरनाक होगी। गैस प्रेशर में कमी आने पर ही काबू पाया जा सकेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, आग को महदूद कर दिया गया है, सूरत हाल काबू में है, एतराफ़ कोई आबादी नहीं। नुमाइंदा पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी का कहना है, कोरंगी में पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। अमूमन 1 से 2 हफ्तों में ये आग खुद बुझ जाती है। बलोचिस्तान में कौमी शाहराहों पर रात को सफ़र से रोक दिया गया। यूब मूसा खेल नोशकी के डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी शाहराहों पर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। CB शाहरा, यूब, DI खान शाहरा, कोस्टल हाईवे पर सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। कोयटा, तफ्तान शाहरा, लौरालाई, डेरा गाजी खान शाहरा पर भी सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। बलोचिस्तान में अमन की बहाली के लिए ठोस इकदाम का फैसला। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की की ज़ेर सदारत इजलास। फोर्सेस की इस्तेदाद कार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। ईद पर सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा। वफाकी वज़ीर दाखिला की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन ज़ुबैर के घर आमद। मोहसिन नकवी के शहीद के वालिदैन और अहल खाना से मुलाकात। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिदैन के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद मेजर साद की कुर्बानी पर पूरी कौम को नाज है। मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का सरमाया है। मेजर साद चंद रोज़ कबल यूब के इलाके से बाजा में शहीद हुए थे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में वुमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने की हिदायत। बाजारों में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है काटलिंग में मुस्बत और काबिल एतमाद इत्तलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ। उन्हीं लोगों की हलाकत हुई जो दहशतगर्द थे। अगर दहशतगर्द बीवी बच्चों के साथ दहशतगर्दी की तैयारी करें तो हमला होगा। उधर पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है पीटीआई के सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद अली शाह ने काटलिंग वाक़े की दुरुस्त मालूमात दी। पीटीआई कोर कमेटियों को बैरिस्टर साहब के बयान के कुछ हिस्सों पर मायूसी हुई। पीटीआई हमले की मजम्मत करती है। हमले में मासूम जानों का नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में गांव मलूक खोड़ो आमद। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को घरों की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सिंध में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए दुनिया में घरों को बनाने का सबसे बड़ा मंसूबा तेजी से मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड के हैमिल्टन में डेरे। कौमी टीम आज सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे प्रैक्टिस करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। ओपनिंग बैटर उस्मान खान इंजरी का शिकार। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर। कौमी क्रिकेटर्स की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद, दुआओं की अपील। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। जारहाना बल्लेबाज फ़खर जमान बोले सबको ईद मुबारक, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। नसीम शाह ने अपने पैगाम में कहा खुश रहो, हमारे लिए दुआ करो, हम अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। मैच जीतने पर आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। गैर मुल्की सफरा और काउंसिल जनरल्स की ईद उल फितर की मुबारकबाद। अमरीकी काउंसिल जनरल ने अपने पैगाम में कहा दुआ है कि ये ईद आप सब के लिए खुशहाली लाए। रूसी सफीर ने कहा ईद के पुरमसरत मौके पर अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में मौजूद जापानी की भी ईद पर मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की भी मुबारकबाद। अहलिया के साथ चूड़ियाँ भी खरीदी। अलविदा प्यारा रमज़ान, चांद रात मुबारक। पूरा महीना इबादत, मुस्तहिकीन की दिलजोई और मेहमान नवाजी। मेज़बान जवेरिया सऊद ने हर ट्रांसमिशन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खसूसी ट्रांसमिशन 1 रमज़ान को शुरू हुई जो चांद रात तक जारी रही। कई अहम शख्सियात ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। क्विज़ मुकाबलों में ढेरों कीमती इनामात दिए गए।